So yesterday we have started the function of complex number. So fz is a function of complex number. Z is a complex number. It will be written as a u. U is a function of xy. Iota v. V is a function of xy. Correct. This is a function of complex number. So कल हमने दो तीन बड़े मेजर कॉन्सेप्ट किए थे. तो लिमिट के बारे में देखा, फिर कॉन्टिन्यूटी, देन डिफरेंशिएबल, देन एनालिटिकल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एनालिटिकल फंक्शन. So what we have discussed about the analytical function, because this is very important. Function. So if function, I'm just revising that I have done yesterday, means if any function fz is said to be analytical at z is equal to z naught, if it is the first condition, it must have the single value at this. The second thing, it must be differentiable not only at z, it must be differentiable at every neighborhood of z naught. This was the basic definition of analytical function. Now what today we are going to do, we are going to do the necessary and sufficient condition for fz to be analytic. Very important. Correct. Very important. कि कौन सी कंडीशन है जिसपे हम चेक करके ये बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि whether the given function is analytical or not. So if you have any w is any function of complex number z, it will be written as a uxy. Already I have explained to you, iota vxy. So there are two conditions. Number one, derivative, partial derivative of u with respect to x, partial derivative of u with respect to y, partial derivative of v with respect to x, partial derivative of v with respect to y. These derivative, individual derivatives are continuous of are continuous function of x and y. ये सारे इन द रीजन, जो भी आपका गिवन रीजन होगा, इन द गिवन रीजन आप लिख सकते हो. मतलब उस रीजन में ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, जो भी गिवन रीजन होगा. तो ये जो चारों डेरिवेटिव हैं ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए. तो कॉन्टिन्यूटी की आपको डेफिनेशन पता है. तो जैसे आप देखते हो, द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बोलते हैं, कर्ल u बाय कर्ल x must be is equal to कर्ल v by कर्ल y, and the second is the कर्ल u by कर्ल y is equal to minus कर्ल v by कर्ल x. तो किसी फंक्शन को आपने चेक करना है कि वो एनालिटिकल है, तो these two equation, derivative of u with respect to x must be is equal to derivative of v with respect to y, and derivative of u with respect to y must be is equal to derivative of v with respect to x, negative of that one. So these two equation number 1 and equation number 2 are known as Cauchy-Riemann equations. In short, you will know them as CR equation. So CR equations is the basic, is the necessary condition, sufficient condition for checking that whether given function is analytical or not. देखो कॉन्टिन्यूटी को चेक करना इस बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं होगा. वो तो नॉर्मली जहाँ जितने अलजेब्रिक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होते हैं. तो जब कोई डबल वैल्यू फंक्शन आता है तो उसमें थोड़ी सी देखना पड़ेगा हमें वेदर इट इज कॉन्टिन्यूस और नॉट. सो वेरी रेयर चांस
the sum function will not be continuous. But second condition is the important, जो CR इक्वेशन है. तो समय देखो बेटा, ये हमारे पास आ गई CR इक्वेशन, तो ये बड़े ध्यान से समझनी है. ये CR इक्वेशन जो हमारे पास है, ये बेसिक कंडीशन हम whenever you want to check whether function is analytical or not, तो आप बेसिकली इसको वेरीफाई करोगे कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास एनालिटिकल है या नहीं. करेक्ट है. तो अब देखिए, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, लेट टेक द एफजेड एग्जांपल करते हैं. ठीक है जी. तो जरा तो स्टूडेंट सी, द फर्स्ट कंडीशन इज कि ये हमें क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन करना है ABCD की वैल्यू सो दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिकल. तो जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हेयर u इज इक्वल टू, ये u होगा, ये v रहेगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस AXY प्लस BY स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू CX स्क्वायर DXY प्लस y स्क्वायर. अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर ये एनालिटिकल फंक्शन है तो ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव निकाल लो. डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x यू कैन फाइंड इट इज 2x प्लस विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो, सो y विल बी कांस्टेंट, सो ay एंड दिस विल बी फिनिश. ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाल लो. So you have this is 0, so now x is a constant, so ax plus 2by. Now you can find derivative of v with respect to x, so this will be 2c, yes, 2cx plus dy. You can check it is dy because x is a variable, y is a constant and y square 0. Derivative of v with respect to y, so when you will find it, चारों डेरिवेटिव निकाल लो. तो ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूज होंगे. यू नीड नॉट टू चेक, इट इज ऑलरेडी क्लियर. C1 A B C D आर द कांस्टेंट दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो हमने इसका डेरिवेटिव किया, ये तो पहला 0 आ गया. इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y dx और इसका आएगा जी 2y. डन हो गया. नाउ so it is given that it is analytical, so therefore as fz is analytic, therefore it must satisfy CR equation. करेक्ट. तो अगर वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे देन कर्ल, ध्यान से देखो CR इक्वेशन क्या है, कर्ल u बाय कर्ल x. अब याद रखना शुरू करो, कर्ल u बाय कर्ल x मस्ट बी इज इक्वल टू कर्ल v बाय कर्ल y. सेकंड, कर्ल u बाय कर्ल y विल बी इज इक्वल टू माइनस कर्ल v बाय कर्ल x. इनको याद रख लो अच्छे से, दिमाग में बिठा लो. तो ये इक्वल है. सो देयरफॉर derivative of u with respect to x, 2x plus ay. Derivative of v with respect to y, it is this, so dx plus 2y. जब आप कंपैरिजन करोगे तो बेटा d की वैल्यू, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट d इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 2. डन हो गया. नाउ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, इट इज दिस ax plus 2by is equal to minus curl v by curl x, this, so it is 2cx plus dy. माइनस बाहर है तो आपके पास आ गया जी ax माइनस प्लस 2by इज इक्वल टू माइनस 2cx माइनस dy. देखिए अब हमारे पास यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो a विल बी इज इक्वल टू माइनस 2c, सो यू गॉट a
तो a इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, सो -2c, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1, करेक्ट। तो जब आप इसको कंपैरिजन तो हो गया, यू गॉट द c, सो नाउ यू कैन कंपेयर दिस, 2b इज इक्वल टू -d, तो d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, 2b इज इक्वल टू 2 and b is equal to -1, so you get a, absolutely right, you get a, you get b, you get c, get d. Answer. Student, you know that polar form, already I told you that what is the polar form of x. You know that if z is depending upon x and y, this is real part of and this is imaginary part. You know that x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. These are the r and theta is the polar form of the representation, and you know that this can be written as r cos theta plus iota r sin theta. You can get r common, you have a cos theta plus iota sin theta. So r cos theta plus iota sin theta, I told you that you can write it e raised to power iota theta also. So z you can write this, ये याद रख लो हमेशा। तो जो हमारा फंक्शन होगा, जो हमारा एफ जेड फंक्शन है, u प्लस iota v है, उसको आप एफ जेड है तो जेड की जगह आर इंटू ई रेस पर आयोटा थीटा भी लिखोगे पोलर फॉर्म में, करेक्ट। अब जब मुझे अगर डेरिवेटिव निकालना है, देखो दो काम है, ये जो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। अब कैसे पोलर फॉर्म बनाएंगे सीआर की, सीआर इक्वेशन अपने दिमाग में रख लो। सीआर इक्वेशन आपके पास कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल वी बाय कर्ल वाई एंड कर्ल u by कर्ल y इज इक्वल टू माइनस कर्ल v by कर्ल x। डन। ये आपने याद रखनी है सीआर इक्वेशन, ये होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x और y के अंदर। अब हमें r एंड थीटा के अंदर देखनी है कि पोलर फॉर्म किस, जो सीआर इक्वेशन है वो किस तरह से नजर आएंगी, तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू r। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to r, so we get, आप इसको करोगे u को कर्ल u बाय कर्ल r प्लस आयोटा कर्ल v बाय कर्ल r, डन हो गया। नाउ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ f विल बी f डैश एनीथिंग e रेज टू पावर आयोटा थीटा एंड e रेज पर आयोटा थीटा का फिर आगे, तो विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हो, थीटा विल बी वेरिएबल, तो यू हैव e रेज पर आयोटा थीटा। ओके, सो बिकॉज़ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन दिस, इसका फिर से आप आगे डेरिवेटिव करेंगे, यू विल गेट दिस। So I am taking this is equation number 2, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। So now move further, differentiate equation 1 with respect to theta, so we get, क्या मिलेगा आपको, देखो इस u का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी यू बाय डी थीटा प्लस आयोटा, सॉरी कर्ल u बाय कर्ल v बाय कर्ल थीटा, डन हो गया। अब इस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ f का तो f डैश ही होगा, r e raised per iota theta and derivative of r into e raised per iota theta again. R is a constant because you are finding the derivative with respect to theta. So you will differentiate e raised per iota theta, और e raised per iota theta का derivative e raised per iota theta as it is। अच्छा r भी साथ में constant है तो लिखेंगे, ठीक है। तो e raised per iota theta का e raised per iota theta और iota theta का फिर आगे that will be iota, ठीक है। तो what you are getting here, you are getting r iota r और e into दिस, ये e रेज पर आयोटा थीटा इंटू दिस, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। तो फ्रॉम यहां से आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू कर्ल u बाय कर्ल r प्लस आयोटा कर्ल v बाय कर्ल r, बोल सकते हैं यूजिंग फ्रॉम 2। ओके, सो व्हेन यू विल गेट इट, सो अब आपने क्या करना है, कर्ल u बाय कर्ल थीटा प्लस आयोटा कर्ल v बाय कर्ल थीटा इज इक्वल टू, देखो
आपके पास ये आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, यू आर गेटिंग -1 माइनस आर कर्ल वी बाय कर्ल आर, तो ये इससे तो मल्टीप्लाई हुआ माइनस आयोटा प्लस आयोटा आर कर्ल यू बाय कर्ल आर। इफ यू विल कंपेयर बोथ साइड, तो यहाँ पे रियल पार्ट है कर्ल यू बाय कर्ल थीटा, यहाँ पे रियल पार्ट है माइनस आर कर्ल वी बाय कर्ल आर। आप इमेजिनरी पार्ट कंपैरिजन करोगे, यू विल गेट कर्ल वी बाय कर्ल थीटा इट इज इक्वल टू आर कर्ल यू बाय कर्ल आर। ओके, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाता है। अब ये आप इसको कैसे लिखना चाहते हो, ये हमारे पास सीआर इक्वेशन आ गई पोलर फॉर्म में। तो नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, जैसे हमारे पास कर्ल यू बाय कर्ल आर, तो मैं कर्ल यू बाय कर्ल आर, पहले आर को डिफरेंशिएट किया, ये 1/r चले जाएगा, 1/r इधर कर्ल वी बाय कर्ल थीटा, क्योंकि मैं यू को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कर्ल वी बाय कर्ल आर, कर्ल वी बाय कर्ल आर, तो ये चला जाएगा -1/r कर्ल यू बाय कर्ल थीटा। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि इस तरह से याद रखना है, इज इट अप टू यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज द पोलर कार्टेशियन इक्वेशन, कॉची-राइमन इक्वेशन या सीआर इक्वेशन इन पोलर coordinates. So student, what is the meaning of harmonic function? A function of x and y which possesses continuous partial derivative of the first order and second order. दिस इज इम्पोर्टेंट। मतलब कोई फंक्शन है, मान लो u एक फंक्शन है, उसको आपका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x और y, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, वो सारे के सारे डेरिवेटिव जो है कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, करेक्ट, नंबर 1, एंड satisfies Laplace equations is called a harmonic function. आपको ये लग रहा होगा कि लैपलेस इक्वेशन क्या है, बिकॉज इट इज इन प्रीवियस यूनिट, तो मैं बता देता हूँ लैपलेस इक्वेशन क्या होती है। अगर u एक फंक्शन है ना, तो उसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, दोनों के डबल डेरिवेटिव का सम का 0 आ जाए तो लैपलेस इक्वेशन है। मतलब इफ यू वांट टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक और नॉट, सिंगल फंक्शन, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव सारे कंटिन्यूस होने चाहिए, और वो फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए लैपलेस इक्वेशन को, इट मस्ट सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन, दैट फंक्शन विल बी द हार्मोनिक फंक्शन। सो u here, u is the harmonic function, correct? So similarly, if any function you want to verify whether it is harmonic or not, you need to differentiate with respect to x 2 times, differentiate y with respect to 2 times, you need to add it. If you are getting 0, then it will be harmonic function। इसके अंदर वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। अगर फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं ना कर रहा, मतलब समझ लीजिए आप, सिंपल जो है कि फंक्शन की लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट होगी तो हम बता चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस है या नहीं। कॉन्टिन्यूस होना जरूरी नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट होने के बावजूद ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो अगला आता है कि कॉन्टिन्यूस है, जरूरी नहीं है कि वो डेरिवेटिव हो, उसका डेरिवेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डेरिवेटिव के बाद आता है जरूरी नहीं है वो एनालिटिकल फंक्शन हो। और लास्ट में आता है हार्मोनिक। मतलब जो हार्मोनिक फंक्शन है वो एनालिटिकल भी होगा, उसका डिफरेंशिएबल भी होगा, वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, उसकी लिमिट भी होगी। जो एनालिटिकल है वो डिफरेंशिएबल भी होगा, वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, वो लिमिट भी होगी।
जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, उसकी लिमिट भी होगी। जो कॉन्टिन्यूस है वो लिमिट, इधर से इसके जो प्रीवियस हैं वो सारे के सारे ट्रू होंगे, बट अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इट विल बी कॉन्टिन्यूस। अगर वो कॉन्टिन्यूस इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल इट इज नॉट रिक्वायर्ड वो एनालिटिकल होगा ही होगा। अगर वो एनालिटिकल है जरूरी नहीं वो हार्मोनिक फंक्शन होगा, क्योंकि वो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई करना। हाँ, अगर वो हार्मोनिक है तो वो एनालिटिकल होना चाहिए। मान लीजिए एक फंक्शन हार्मोनिक है बट वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो हार्मोनिक नहीं होगा। तो ये भी आपको कहीं कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे खास फंक्शन होंगे जिसमें ये चीज आप अप्लाई करके देखोगे कि वो सीआर के लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, बट वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, करेक्ट। तो इसलिए इसमें हमारे पास ये चीज रिक्वायर्ड होती है कि हम सीआर इक्वेशन को भी एक बार व्यू करें, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव तो आपको हार्मोनिकली चाहिए। तो ये सारा प्रोसीजर आपको required है। Okay, now see this question. So what we are going to do, the question is u is equal to u and v are given and you want to check u and v are satisfy Laplacian equation but not harmonic function. तो what I told you that कि वो हो सकता है Laplace equation satisfy करे but CR equation ना satisfy करे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम u को डिफरेंशिएट करते हैं फन टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये हमारे पास यू एक्स वाई, तो सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई विल डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट, सो इट इज माइन प्लस टू एक्स। नाउ आई विल डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इट इज माइनस टू वाई। नाउ वी यू हैव, वी आपके पास क्या है, पहले हम यू का देख लेते हैं। तो कर्ल स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, कर्ल स्क्वायर यू इट इज 2 एंड कर्ल स्क्वायर यू डबल डेरिवेटिव कर दिया u का विद रिस्पेक्ट टू y, you are getting minus 2. So therefore कर्ल स्क्वायर u कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर u कर्ल y स्क्वायर is equal to 2 minus 2, you are getting 0. So it satisfies the CR equation. Okay, so now let's check the v. V is equal to y upon x square plus y square. Okay, so derivative of uv, first you will differentiate v with respect to x. When you will differentiate v with respect to x, तो u over v का कॉन्सेप्ट लगाते हैं v square because u over v. Now first thing you must know that you are finding the derivative with respect to x, then y will be constant. आप अपने हिसाब से कर सकते हो, correct। v square, v outside derivative of 0 minus y outside derivative of this will be 2x. So you are getting it is equal to minus 2xy on x square plus y square whole square, correct? So let's check. So now we will differentiate v with respect to y. So when you have a u over v, so what you will get, v square x square plus y square whole square. Now x square plus y square outside, derivative of y is 1 minus y is outside, derivative of x square plus y square is 2y. So this will become x square plus y square whole square. It is x square plus y square minus 2y square. So you are getting here x square minus y square upon x square plus y square whole square, correct? So now differentiate v with respect to x. So curl square v curl x square, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो u ओवर v, तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू पावर 4, इसका स्क्वायर करना होल रेज टू पावर 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ 2xy you are differentiating with respect to x, so you have minus 2y minus 2xy is outside,
correct? 2xy is outside and differentiation of denominator with respect to x. So 2 आगे आएगा, x square plus y square as it is, or x square plus y square का x square with respect to x, again you will get 2x. तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, x square plus y square whole raised to power 4. ओके, तो यहाँ पे एक चीज है, x square plus y square कॉमन आ रहा है इसमें दोनों जगह पे, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -2, एक यहाँ आ गया -2xy को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, -2x स्क्वायर y आ गया, -2 को मल्टीप्लाई किया y से तो आ गया -2y³। नाउ ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो मेरे पास आ गया जी -8x, ये x स्क्वायर है, एक बार मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, और ये y है 8x स्क्वायर y, और अंदर है x स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई यू आर गेटिंग 4, और अगर आप ये -8x स्क्वायर और ये y था, y को y³ तो y³ आ गया, अंडरस्टैंड? तो हमारे पास x स्क्वायर y, ओ सॉरी ये तो बेटा कॉमन निकल चुका है, तो वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर, ये कॉमन निकल चुका है। ओके, तो ये हमारे पास आ रहा है। ओके, दिस इज, अच्छा ये -2 था, यहाँ आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, वेरी गुड। तो व्हाट यू विल गेट हेयर, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज टू पावर 4। अच्छा ये कैंसिल कर देते हैं हम, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 रह जाएगा, करेक्ट? तो यू कैन राइट हेयर 3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, 6x स्क्वायर y -2x स्क्वायर y, दैट इज सॉरी 8x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर y आ जाएगा, तो -2y³, ये मेरे पास बन गया कर्ल स्क्वायर v कर्ल x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होगा v का विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, डबल डेरिवेटिव, ठीक है? पहले मैं एक बार लिख दूं कि जो मेरे पास कर्ल v बाय कर्ल y है, वो मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? तो what you will, when you will differentiate one more times v with respect to y, so what you will get, c x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू पावर 4, तो ये अब आगे आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2, आगे डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y इज -2y, so minus x square minus y square, side derivative of this is 2x square plus y square, आगे आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y will be 2y। ओके, सो ये हमारे पास रिजल्ट बन जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, तो दैट विल बी कैंसिल विद द डिनोमिनेटर विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा -2y को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 इज ऑलरेडी आउट, सो -2x स्क्वायर y, तो 2y को मल्टीप्लाई किया -2y³। नाउ दिस इज ऑलरेडी कॉमन, 2 इंटू 2 4, 4y है, 4y को -4y है, -4y को मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो -4y को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर y, तो -4y को -y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास +4y³। So what you will get here, you will get x square plus y square whole raised to power 3, so you will get here -2x square y, -2 -6,
-6 and this is equal to plus 2y cube. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं. सो कर्ल स्क्वायर v कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर v कर्ल y स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं कि वी वांट टू चेक वेदर इट सेटिस्फाई CR इक्वेशन और नॉट. तो कर्ल स्क्वायर u कर्ल स्क्वायर v कर्ल x स्क्वायर हमारे पास ये है, दैट इज डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3. तो जो v का है वो हमारे पास है 6x स्क्वायर y माइनस 2y क्यूब, करेक्ट है. तो ये हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर, और इसका न्यूमिनेटर क्या है, -6x स्क्वायर y प्लस 2y क्यूब. So this will be cancelled out, you are getting 0, means it v is also satisfy CR equation, correct. But one more thing is you want to check, आपके पास यहाँ वापस जाइए. अब आपको पता है जो CR इक्वेशन होती हैं, तो कर्ल u CR इक्वेशन होती है कर्ल u बाय कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल v बाय कर्ल y. तो कर्ल u बाय कर्ल x क्या है, 2x. कर्ल v बाय कर्ल y, तो कर्ल v बाय कर्ल y ये है, तो दे आर नॉट इक्वल, मतलब ये नॉट इक्वल है. दूसरी बात, कर्ल u बाय कर्ल y वो हमारे पास ये है, और कर्ल v बाय कर्ल x वो नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए. तो कर्ल v बाय ये तो बहुत ये x, they are not equal, both are not equal, so they are not, means it not satisfied CR equation. So hence proved कि ये CR लैपलेस इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको हार्मोनिक बोल नहीं सकते. तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड डिटरमाइन द हार्मोनिक कंजुगेट. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म में, m dx एंड n dy में is equal to 0. If you have a differential equation of the form this, means dx का कुछ कोफिशिएंट है और dy का कोफिशिएंट है. अगर आप डिफरेंशिएट करो m का, तो एक्चुअली क्या होता है बेसिकली कि ये इक्वल टू 0 क्या है, जिसका प्रॉपर डेरिवेटिव बन जाता है. अगर यू हैव ए कर्ल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये दोनों इक्वल होंगे देन दिस गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट. एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट कैसे आता है कि मीनिंग कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हों तो वी कैन कन्वर्ट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट विल बिकम 0, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, करेक्ट. क्योंकि अगर मैं डेरिवेटिव 0 लेता हूं तो इसका इंटीग्रेशन लूंगा ना, तो v की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो v की वैल्यू निकालनी ईजी हो जाती है सॉल्यूशन करना. तो आप इतना फंडामेंटल याद रख लो फिलहाल कि ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे. जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस पे करेंगे तो उसमें आपको ये पूरी क्लैरिटी मैं दे दूंगा आपको कि क्या कॉन्सेप्ट रहता है. तो यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, व्हेन m dx इज प्लस n dy इज इक्वल टू 0, देन इफ डेरिवेटिव ऑफ m मस्ट बी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ n. तो ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है. अब जरा ध्यान दीजिए, अब आपके टोटल डेरिवेटिव का फंक्शन है, अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ जेड u प्लस ओटा v, करेक्ट. तो एंड इज एन एनालिटिक फंक्शन, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये u एक्स वाई है एंड v एक्स वाई है, एंड ये दोनों ही कॉन्जुगेट फंक्शंस हैं. अब कॉन्जुगेट फंक्शन बेसिकली किस तरह से, क्या मीनिंग क्या रहता है कॉन्जुगेट का, उसकी जो किसी एक लाइन के अबाउट
कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट के जो फंक्शन है उस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, मतलब अगर ये फंक्शन इधर बिहेव कर रहा है तो वैसे ही बिहेव जाकर दूसरी जगह पे भी करेगा अबाउट द लाइन। वो एक्स एक्सिस लाइन हो सकती है, वाई एक्सिस हो सकती है। पर यहाँ पे जरा देखिए हमें कॉन्जुगेट फंक्शन कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए अगर मैं कोई फंक्शन v निकालना चाहता हूँ, मान लो v फंक्शन है मेरे पास, तो v इज डिपेंडिंग अपॉन x एंड y। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। तो अगर मैं टोटल डेरिवेटिव निकालूंगा v का, ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा v को विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि बिकॉज v इज डिपेंडिंग अपॉन x, पार्शियल डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y एंड dy, ओके, ये टोटल डेरिवेटिव मैंने लगा दिया, ठीक है, क्योंकि v इज डिपेंडिंग अपॉन बोथ द फंक्शन। जब v को विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो x का आगे टोटल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है हम अगर मैं v को विद रिस्पेक्ट टू t करना चाहूँ तो ऐसे हमारे पास बन जाती है, वो वी आर जस्ट रिमूविंग इट, ओके। टोटल डेरिवेटिव का हमने कॉन्सेप्ट पिछले सेमेस्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, तो वहां पे ये चीज यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, करेक्ट। तो अब जरा देखिए, अगर ये फंक्शन जो है एनालिटिकल फंक्शन है, ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशन। तो बाय CR इक्वेशन, ध्यान से देखना, तो CR इक्वेशन में होता है कर्ल u बाय कर्ल x विल बी इज इक्वल टू कर्ल v बाय कर्ल y एंड कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू माइनस कर्ल u बाय कर्ल v बाय कर्ल x। तो जरा ध्यान से देखना, अब कर्ल v बाय कर्ल x की जगह पे, कर्ल v बाय कर्ल x की जगह पे माइनस इधर ले जाता हूं, आई एम गोइंग टू पुट कर्ल u बाय कर्ल y, करेक्ट। और यहां पे मैंने चेंज नहीं किया, अच्छा, कर्ल v बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल y की जगह पे मैंने क्या कर दिया, ये dx, दैट विल बिकम कर्ल u बाय कर्ल x। तो आई हैव यूज्ड CR इक्वेशन, बड़े ध्यान से समझना जरा। अब मेरे के पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा u के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को पता होना चाहिए कि ये जो जरा साइड देखो और dv, अगर ये इज इक्वल टू 0 है, तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये हमारे पास m हो गया और ये हमारे पास n हो गया। तो अगर ये m की वैल्यू जो हमारे पास है माइनस कर्ल u बाय कर्ल y है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ये एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट का मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा माइनस कर्ल स्क्वायर u कर्ल y स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और डेरिवेटिव ऑफ n हमारे पास क्या है, यहाँ पे n हमारे पास है कर्ल u बाय कर्ल x। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ कर्ल n बाय कर्ल x के साथ, तो ये बन जाएगा कर्ल स्क्वायर u कर्ल x स्क्वायर। तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इट देयरफॉर कर्ल m बाय कर्ल y will be is equal to कर्ल n बाय कर्ल x। तो दिस इंप्लाइज कर्ल m बाय कर्ल y हमारे पास ये है माइनस कर्ल स्क्वायर u कर्ल y स्क्वायर, तो इज इक्वल टू बन जाएगा कर्ल n बाय कर्ल x। तो दिस इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u कर्ल x स्क्वायर। तो व्हेन यू विल कन्वर्ट, यू विल टेक दिस अनदर साइड, तो आपको एक हार्मोनिक फंक्शन मिल जाएगा, करेक्ट। तो जरा ध्यान से देखिए, आपके पास ये u एक हार्मोनिक फंक्शन है और इसका आपने कॉन्जुगेट निकाला v, v की वैल्यू आपके पास क्या है, dv, dv आपके पास क्या है, कर्ल u बाय कर्ल x dx कर्ल v बाय कर्ल y dy। अब आपको याद रखने वाली चीज ये है कि जब भी आपने हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसका निकालना है तो ये रिलेशन याद रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक आपको क्वेश्चन करके दूंगा जिससे आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो दो तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देना। निकालना हमने v है, ठीक है, तो हमें v गिवन नहीं होगा, हमें v निकालना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। उसका दूसरा मीन्स जब हमारे पास फंक्शन एक u प्लस योटा v है ना, तो अगर ये एनालिटिकल फंक्शन हो, ठीक है, तो अगर ये इसमें से एक फंक्शन हार्मोनिक हुआ तो उसका कॉन्जुगेट v होगा, वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। कैसे, सीधा क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमारे को u दिया हुआ है 1/2 log, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। शो दैट द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक, पहला तो हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन हार्मोनिक है। इसका फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना, हमें v निकालना है, जिससे हमारे एक फंक्शन जो है, ये जो fz फंक्शन है, दैट विल बिकम ए एनालिटिकल फंक्शन। ठीक है, उसका मैंने एक फार्मूला आपको प्रूव करके दिया है, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले वी वांट टू चेक वेदर इट इज हार्मोनिक और नॉट। सो कर्ल u बाय कर्ल x, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 इज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ log u 1/u, u का फिर डेरिवेटिव आ गया 2x, सो 2 कैंसल, यू आर गेटिंग x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ कर्ल स्क्वायर u कर्ल x स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव कर दिया इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आउटसाइड। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x is 1 minus x is outside, derivative of x square is plus y square is, because we are finding derivative with respect to x, so you are getting 2x. So this will become x square plus y square whole square, x square plus y square minus 2x square. Understand? So ये मेरे पास आ गया कर्ल स्क्वायर u कर्ल x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ यू विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। सो 1/2 आउटसाइड log u 1/u, डेरिवेटिव ऑफ u अगेन 2y with respect to y, so 2 cancel, you are getting y x square plus y square। वैसे तो सिमिलरली भी लिख सकते हो, बड़ा आसान है इसी तरीके से, पर मैं कर देता हूँ कर्ल u बाय कर्ल y स्क्वायर। सो y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर v स्क्वायर आ जाएगा, v आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ गया, माइनस y आउटसाइड, डेरिवेटिव x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, x स्क्वायर का 0 y स्क्वायर का 2y आ गया। सो यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अंडरस्टैंड? सो कर्ल स्क्वायर u कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिकॉज एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर नेगेटिव आ गया, ये हमारे पास आ गया। दिस इज कर्ल स्क्वायर u कर्ल एक्स स्क्वायर, the curl square u curl y square, so therefore curl square u curl x square plus curl square u curl y square, मेरा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका न्यूमिनेटर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका न्यूमिनेटर है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग 0। सो देयरफॉर u इज अ हार्मोनिक फंक्शन बिकॉज़ इट सैटिस्फाइज द लैप्लेस इक्वेशन। नाउ अगर वो हार्मोनिक है, then it must contain its harmonic conjugate, तो हार्मोनिक conjugate होगा v, so therefore dv will be is equal to कर्ल v by x dx और कर्ल v by कर्ल y dy। अब इसको कैसे निकालना है आपको पता है, सीआर इक्वेशन से इसकी जगह पे क्या लिखोगे, माइनस कर्ल u बाय कर्ल y, यू नो दैट, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, कर्ल u बाय कर्ल x dy, क्योंकि कर्ल v बाय कर्ल x सीआर इक्वेशन में हमारे पास ये होता है। अभी कर्ल u बाय कर्ल x भी है, कर्ल u बाय कर्ल y भी है, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। सो दिस विल बिकम कर्ल u बाय कर्ल y की वैल्यू हमारे पास है y अपॉन, माइनस तो ऑलरेडी आउटसाइड है, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और कर्ल u बाय कर्ल x की हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy। करेक्ट, बड़े ध्यान से समझना जरा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास एक्स dy माइनस वाई dx, देख लो एलसीएम सेम आ गया। देखिए जरा, अब हमारे पास ये क्या बन जाता है, ध्यान से देखना जरा, इसका एक बड़ा शॉर्टकट वे है, आपको थोड़ा सा क्योंकि ये डी वी है,
तो देखिए दिस विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ, वैसे इसकी मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा कि सीधा ये कैसे बनते हैं। तो दिस विल बिकम tan इनवर्स y ओवर x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y ओवर x। हाउ? देखो जब आप डेरिवेटिव करोगे tan इनवर्स इसका विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y करते हो, तो आपको क्या बनेगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ओके, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y करते हो, अंडरस्टैंड, जब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हो तो tan इनवर्स u का 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर, u का फिर आगे, तो विद रिस्पेक्ट टू y का क्या आएगा 1 ओवर y 1 ओवर x, अंडरस्टैंड, और साथ में आ गया dy। तो जब आपने किया विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, जब आपने विद रिस्पेक्ट टू इसको x किया तो देखो क्या आएगा आपके पास प्लस 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और y ओवर x का विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो y तो कांस्टेंट है बाहर निकला। तो आपने 1 ओवर x का डेरिवेटिव करना है, तो 1 ओवर x का डेरिवेटिव को माइनस 1 ओवर x के इंटू डी एक्स। तो देखो ये यही चीज बन रही है, आप इसका एलसीएम लोगे, ये विल दिस विल बिकम x dy अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये बन जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू डी एक्स। यही बन रहा है, तो यू कैन राइट दिस डायरेक्टली। तो 3-4 ऐसे ये व्यू है जो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, तो आपको सीधा, कई बार यहाँ माइनस होगा, यहाँ बीच में प्लस होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो v की वैल्यू dv इज इक्वल टू आ गया d tan इनवर्स y ओवर x। तो डिफरेंशिएट किया आपने दोनों साइड तो कैंसिल हो गया, देन v इंटीग्रेट कर दिया तो v वैल्यू आ गई tan इनवर्स y ओवर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर।